हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई वेलकम यू ऑल टू दिस एक्सपर्ट इंटरेक्शन सेशन. सो दिस इज अ सेशन वेयर वी आर कॉलिंग एन एक्सपर्ट जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट ऑन यूट्यूब. So today we are going to call Dr. Pushpendra Patel, who is the founder of Dr. Pushpendra Classes. I hope you all have seen his channel. I hope a lot of students who are watching my video today have already got benefited from sir's channel. So sir ने nation के लिए जितना काम करा है, ने चैनल पे जितना काम करा है, फ्री ऑफ कॉस्ट जितने लेक्चर्स प्रोवाइड करे हैं स्टूडेंट्स को, कोविड टाइम पर ही हेल्प्ड all of us. He helped the general public by the information he gave to all of us. So the work is commendable. He has done a lot of things which a normal person cannot do. And उन्होंने ये सब चीज कब करी? While he was working as an associate professor at KIT Group of Institution as well. He was head e-learning at KIT Group of Institution also. So now with this designation, he was managing his channel, and now he have not one, not two, not three, and now he is going to launch his fourth channel as well. So आप देख सकते हैं कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं सर, एंड द हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ. सो यही हुआ है सर के केस में, एंड टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द थिंग्स अबाउट यूट्यूब. बहुत सारे सीक्रेट्स जानेंगे, सर की जर्नी देखेंगे, हाउ ही स्टार्टेड हिज चैनल एंड व्हाट ऑल थिंग्स हैपेंड आफ्टर ही स्टार्टेड हिज चैनल. क्या उनको बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई, व्हाट हर्डल्स ही गॉट एंड हाउ ही ओवरकम दोज हर्डल्स. Actually, if I tell you my story, when I started the channel, Vaishali's e-learning, of course. So at that time, I was very naive. I didn't know a lot of things related to YouTube. So sir came in my life and sir gave me a lot of inspiration, motivation, knowledge and some secret tips as well. So आज हम लोग आपके पास आए हैं वो सब चीज़ें लेकर, motivation, inspiration, secret tips, all in one. So we are going to ask a lot of questions, the queries you guys have, and as a fresher the queries I had when I started the channel. कितना कमा सकते हैं चैनल से, सबकी बहुत बड़ी क्वेरी रहती है, and कितने पैसों में एक चैनल स्टार्ट कर सकते हैं. So what things we need initially to start a channel, and where do we can make the setup. बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में. चैनल स्टार्ट कब करना चाहिए अपनी लाइफ में as a student or after going to the companies, because now I have seen a lot of students when they are moving to their MNCs or their jobs. Now after moving to the job, they are starting their channels. So would it be better to start a channel when you are already a student only? So at the student time, when you start a channel, what benefit you are going to get when you will be going to the MNCs, and because the time factor would always be there. Time factor is going to give you how much benefit, हम सर से पूछेंगे. And after that we have a lot of queries about COVID as well, because sir ने बहुत detailed work करा है on COVID. He started with a very basic video on COVID with his experience, which got viral, and after that he started working on the COVID videos, and he had more than 30 videos on COVID itself. And we are going to ask a lot of things from sir, a lot of expert views from sir about the COVID. A lot of people are asking about the third wave of COVID, about the vaccination drive, and various other questions we are going to ask. So stay tuned with me till the end of this session, and you are going to get a lot of new information. You are going to get that motivation, after which you are going to stand up and you will start your channel today itself. So that motivation you are going to get after watching this video. क्योंकि जब मैंने start करा था channel, when I used to meet sir, that days I always worked hard. सर से मिलने के बाद मुझे लगता था कि सर इतने पॉजिटिव हैं, सर से जो मोटिवेशन मिली, आई हैव टू यूज दैट, आई हैव टू मेक समथिंग प्रोडक्टिव फ्रॉम इट. सो आफ्टर दिस वीडियो यू आर ऑल्सो गोइंग टू डू समथिंग प्रोडक्टिव इन योर लाइफ. I can bet that. So let's call sir on the show.
वेलकम टू द शो सर. आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड. आज गुरु पूर्णिमा के दिन पुष्पेंद्र सर मेरे चैनल पर आए, शो पर आए हैं. This is such a big day for me, big day for all of my students. All of us are so proud, so happy. Sir, आप इस channel पर आए हैं. Welcome to the show, sir. Sir, Thank you so much. thank you, sir. Thank you so much for coming here. Sir, we have a lot of questions for you. This show is going to be the biggest show for my channel. And the first question we are starting here. Without wasting any time, sir, we all want आपकी journey हमें जाननी है as a YouTuber. ओके, एज अ यूट्यूबर जर्नी तो ऐसा कि मतलब कोई बहुत बड़ा जर्नी या फिर बहुत बड़ा चैनल तो नहीं है मेरा, फिर भी एजुकेशनल चैनल के हिसाब से ठीक ठाक है. तो जर्नी कुछ इस तरीके से, मैंने कुछ ऐसा स्टार्ट नहीं किया था कि मुझे बड़ा यूट्यूब चैनल बनाना है या फिर बहुत सारे सब्सक्राइबर आएंगे. वो हो गए, धीरे धीरे करके लोग जुड़ते गए. एक्चुअली में ये प्रॉब्लम को लेकर के मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था. प्रॉब्लम ये था कि जब भी मैं कभी क्लास में लेक्चर डिलीवर करने जाता था तो प्रॉपर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके मैं जाता था. और जाने के बाद देखोगे तो सारे टीचर्स के साथ ये प्रॉब्लम आता है, आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आता होगा कि जो 50 का मान लो स्ट्रेंथ है या फिर 60 का स्ट्रेंथ है तो उसमें 100% अटेंडेंस होना बहुत ही रेयर है. ऑलमोस्ट आपको 80% 90% स्टूडेंट्स आते हैं, है ना. ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होता होगा. तो और अब सोते भी हैं कुछ सोते भी हैं, सुनते नहीं है. अब क्या होता है, आज मैंने क्लास लिया, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं जाऊंगा तो आज जो भी मैंने पढ़ाया है उसको कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन करेंगे कि सर ये समझ में नहीं आया, फिर से बता दो, जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता दिया हुआ होता है. तो उसको यदि आप फिर से रिपीट करने जाओगे तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो कल भी आए थे, आज भी आए, रेगुलर आ रहे हैं, उनका टाइम वेस्टेज होता है. और उस बच्चे को नहीं बताओगे तो फिर आगे का भी उसको समझ में नहीं आएगा. तो अल्टीमेटली ये टाइम जो है कंज्यूम हो जाता था, मतलब टाइम वेस्टेज सा लगता था मुझे. इसलिए मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा स्टार्ट करो कि स्टूडेंट क्लास में आए या फिर ना आए, उसको उसके अंडरस्टैंडिंग में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. यदि स्टूडेंट पढ़ने का मन रखता है तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर सुन ले. तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे. ये मैंने 5 नवंबर 2016 में मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था. तो उस समय कुछ लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया. मैंने 11 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे और उसके बाद फिर 1 साल तक मैं ऑलमोस्ट यूट्यूब छोड़ दिया था, क्योंकि उस ड्यूरेशन में मैंने 2 बुक लिखे, है ना. बी फार्म फर्स्ट ईयर के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल का फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का बुक है, वो लिख रहा था. बट देखा कि उस 1 साल के ड्यूरेशन में उस 11 वीडियो में ऑलमोस्ट 70,000 व्यूज आ गए थे. तो मैंने सोचा कि इसको कंटिन्यू किया जाए, कि मतलब ठीक व्यू आ गए हैं, बहुत अच्छे से बेनिफिट हो रहा है शायद बच्चों को करके. उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यूअसली वीडियोस डालना स्टार्ट किया. अभी मोर देन 430 वीडियोस हैं. और अल्टीमेटली जो मेरा गोल था, जो प्रॉब्लम को लेकर के मैंने स्टार्ट किया था, वो अचीव हो गया. मींस स्टूडेंट उस प्रॉब्लम से निकल करके बाहर आए और उनको डेफिनेटली नॉलेज मिला. तो बस यही प्रॉब्लम को लेकर के मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था और अभी जो भी है चल रहा है. सर डेफिनेटली प्रॉब्लम ऑब्वियसली सब बच्चों का, फार्मेसी का, इवन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का सॉल्व कर दिया है आपने अपने चैनल्स के थ्रू. एंड बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगी सर का 1 नहीं 2 नहीं 3 चैनल्स हैं. तो सर आप मैनेज कैसे करते हैं इतने सारे चैनल्स अकेले? एक्चुअली में मैनेज करने का क्या है, तो अभी तो मेन चैनल मेरा डॉक्टर पुष्पेंद्र क्लासेस है जो पढ़ने के लिए है. उसके बाद फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स का था कि सर हिंदी में वीडियोस डालिए. उसमें मैंने स्टार्टिंग में मैंने इंग्लिश में वीडियोस डाले थे. मैक्सिमम वीडियोस मींस स्टडी के वीडियोस तो मेरे उसमें इंग्लिश में ही है, हिंदी में है नहीं. फिर मैंने सोचा कि हिंदी के लिए एक नया चैनल स्टार्ट करते हैं नए सिरे से. तो डॉक्टर पीके क्लासेस 2.4 डाला. उसमें सारे वीडियोस आपको हिंदी में मिलेंगे, बहुत अच्छे बेटर वे में उसमें मिलेंगे, क्योंकि उसमें इलिस्ट्रेशन वगैरह, बहुत सारे एनिमेशन वगैरह का यूज हमने किया है, ताकि जो हिंदी भाषी राज्य है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश प्रॉपर अंडरस्टैंड करने में दिक्कत होता है, उनके लिए स्टार्ट किया. तो वो जब भी मेरे को खाली टाइम मिलता है तो वो सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करके मैं रख देता हूँ और धीरे धीरे उसको अपलोड करते रहता हूँ. और मीनवाइल जो थर्ड चैनल है उसको तो हमने ऐसे ही स्टार्ट किया था कि मतलब खाने पीने का शौक है, तो जो भी खाते पीते रहते हैं कुछ, या फिर कुछ कुकिंग का शौक है, मेरे कुछ कुछ चीज बनाना भी आता है. तो मैं सोचा कि क्यों ना उसको कभी टाइम मिलेगा तो रिकॉर्ड करके डाल दे, इसलिए वो थर्ड चैनल है. तो उसमें अभी ज्यादा फोकस नहीं दे पा रहे हैं, बट अभी फोर्थ चैनल आने वाला है बहुत जल्दी.
सर फोर्थ चैनल बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, वो उसमें डेली वीडियो आएगा। एक्चुअली में मेरी एक छोटी सी बेटी है, आपने भी देखा होगा फोटो उसको, हाँ तो जी, हाँ जी सर। उसका उसका एक व्लॉग चैनल स्टार्ट करने वाला हूं मैं, क्योंकि उसमें डेली कुछ कुछ एक्टिविटीज करते रहती है। और आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो उसको रखोगे कहाँ पर, हार्ड डिस्क में या फिर कहाँ पर रखोगे? उससे अच्छा एडिटिंग वगैरह सब आता ही है, सारी फैसिलिटीज है ही, उसको एडिट करके उसमें डाल देंगे तो बहुत जल्दी 1 अगस्त या फिर उससे पहले ही वो चैनल, फोर्थ चैनल भी लॉन्च हो जाएगा। तो ये प्लानिंग है। सर के इतने सारे चैनल्स हैं, सर ने इतना सारा एनिमेशंस का काम करा हुआ है। एंड बच्चों, आई एम गोइंग टू टेल यू कितना टाइम लगता है। मैंने एक एनिमेशन बनाई थी स्टार्टिंग में एंड आई टुक 15 days। सर का पूरा एक चैनल में पूरा एनिमेशन है। डॉक्टर पीके क्लासेस 2.0 में इतनी एनिमेशंस पे वर्क करा है सर ने, इतना डिटेल्ड वर्क करा है। इट इज टेकिंग सो मच ऑफ हिज टाइम। वो आपके लिए इतना काम कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कि सर की कोई ऐसी वीडियो है जिसमें आप उनको बहुत अच्छे से जानने वाले, और आज इस वीडियो में आप सर को इतने अच्छे से पहचानेंगे कितना वो आपके लिए काम कर रहे हैं। सर आपने इतने सारे चैनल्स पे काम करे, बच्चों के लिए इतना काम करे, ये जो इतनी बड़ी आपने प्रॉब्लम सॉल्व करी है स्टूडेंट्स की, कि वो एग्जाम के टाइम पर जो उनको इतना हबड़ तबड़ मच जाता था, तो नाउ अगर स्टूडेंट भी अभी वो चाह रहा है कि चलो कॉलेज से बाहर निकल गया है और अभी उसका मन है कि उसे भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए, तो एक स्टूडेंट को ही करना चाहिए, टीचर को ही करना चाहिए, एक इंसान को कब करना चाहिए अपनी लाइफ में यूट्यूब चैनल स्टार्ट, या करना ही नहीं चाहिए? देखो, मेरे हिसाब से तो यूट्यूब चैनल कोई भी पर्सन स्टार्ट कर सकता है, उसको डेफिनेटली यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए। और इसलिए कभी नहीं करना चाहिए कि उसको उससे पैसे कमाना है या फिर मोनेटाइज करना है उसको। मतलब कोई भी आज की डेट में इतना सोशल नेटवर्किंग इतना स्ट्रांग है, सब कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म में आ रहा है, तो यूट्यूब चैनल मीन्स हर बंदे के पास कुछ ना कुछ तो टैलेंट होता ही है ना, कुछ ना कुछ उसके पास स्पेसिफिक होगा जिसमें वो अच्छा होगा। तो वो टैलेंट को लेकर के मीन्स ऐसा काम जो वो फ्री में कर सकता है, 24/7 फ्री में कर सकता है, उस काम को लेकर के उसको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए। और जैसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेगा, इधर ग्रो होगा या फिर नहीं होगा। ग्रो होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तब भी अच्छी बात है, क्योंकि उसके बहुत सारे स्किल्स आ जाएंगे। पहली बात तो उसको शेड्यूल मिल जाएगा एक, मतलब कुछ ना कुछ दिन में काम करने का रहेगा। तो खाली दिमाग शैतान का काम होता है, शैतान का घर होता है, तो उससे वो बच जाएगा। प्लस वो एडिटिंग सीखेगा, कुछ ना कुछ अच्छे से बोलना सीख जाएगा, तो अल्टीमेटली उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, डेफिनेटली होगा। तो इसलिए हर पर्सन को एक तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए जिसमें ओवरऑल उसका डेवलपमेंट हो, ठीक है। और चल गया तब तो उसमें मॉनेटरी बेनिफिट डेफिनेटली होगा, तो एड ऑन है। तो मेरा तो सजेशन यही है कि सबको स्टार्ट करना चाहिए। इवन स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स को भी करना चाहिए स्टार्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, आज की डेट में बहुत बड़े बड़े पोजीशन में, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स बन चुके हैं। उन लोग को जॉब की जरूरत नहीं, उन लोग और लोगों को जॉब दे रहे हैं। तो ये एक टाइप का स्टार्टअप है और इसमें कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। मतलब आपके पास एक सिंपल फोन है, उसी से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक ओपन कैमरा ऐप आता है, वो यूज कर लें, और एक माइक खरीद लें, सिंपल 800-900 रुपए का बोया का माइक आता है, वो खरीद लें। तो उससे बस स्टार्ट कर सकते हैं और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, इवन ये दोनों चीज भी नहीं खरीदेंगे तब भी चलेगा। जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तब मेरे पास ना तो स्टैंड था ना माइक था। मेरा फर्स्ट वीडियो अभी भी देखेंगे 1 लाख से प्लस व्यू है, बट उसमें कुत्ते भौंक रहे हैं बैकग्राउंड में, वो गार्ड सीटी मार रहा है, क्योंकि मेरे पास माइक ही नहीं था। और जो स्टैंड होता है, ट्राइपॉड होता है, तो उसकी जगह पर मैं स्टूल रखा था, स्टूल के ऊपर में मैंने किताबें रखी थी, उसके ऊपर फिर जो मोबाइल का डब्बा रहता है उसमें कैमरा वाले पोजीशन पे छेद करके उसको डाला हुआ था। तो वैसे करके रिकॉर्ड करता था। तो क्या बोलते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो यदि आपको रिक्वायरमेंट होगा तो आप खुद से कर लोगे, किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इतने सारे चीजें अवेलेबल है, सारा चीज आप सीख सकते हो। ट्रू ट्रू सर, आपकी ये जो बात है ना, द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल, सर ही एक इंसान थे जो मेरे को कहीं पे भी पकड़ लेते थे। सर इज माय सीनियर इन कॉलेज एज वेल, तो सर मुझे जहां भी मिलते थे ही यूज टू गाइड मी। बहुत सारी चीजें यूट्यूब के बारे में जो मैंने जानी है सब सर से ही जानी है, और सर का बहुत ही बड़ा रोल रहा है वैशालीज ई लर्निंग में। सो अगर मैं बोलूँ कि स्टार्टिंग वाला जो सारा फेज है वो सर ने ही मैनेज करा है मेरे चैनल का भी, तो ये गलत नहीं है। सर देखते थे कि थंबनेल नहीं है, वैशाली थंबनेल लगाओ, थंबनेल ऐसे बनाते हैं,
यूज दिस, और जहां पर भी मिलते थे इस चीज में ये गलती है, ये चीज गलती मत करो, नेक्स्ट टाइम से वीडियो को इम्प्रूव करो। सर आपने मुझे इतनी सारी सीक्रेट टिप्स दी है। कुछ अभी जो हमारे न्यू यूट्यूबर्स है, क्योंकि अब आपकी ये आपसे मोटिवेशन लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स सब अब चाह रहे होंगे कि उनका यूट्यूब चैनल खुल जाए, उनको कुछ सीक्रेट्स बता दीजिए जो उन्हें अभी तक नहीं पता है कहीं भी। देखो उसमें क्या है कि कोई भी चैनल स्टार्ट करता है तो उसमें सबसे बड़ा रोल उसी पर्टिकुलर पर्सन का होता है। जैसे तुम्हारा ही चैनल ले ले, जब तुमने चैनल स्टार्ट किया तो जो भी मैंने चीजें बोला, एक चीज बोला पहले, तुमको याद होगा कभी भी मैंने इकट्ठे सारी चीजें तुमको नहीं बताई है, कभी भी नहीं बताई। एक बार में एक ही चीज बताया, ट्रू ठीक है। ट्रू। एक बार में एक मिस्टेक की, ये मिस्टेक हो रहा है तो वो बताया, वो तुमने इम्प्रूव कर लिया, फिर दूसरा बताया। वो मैं मतलब सामने वाले को ये भी देखना कि मैं वो चीज बोल रहा हूँ तो उसको अच्छा लग रहा है, वो इम्प्रूव करना चाह रहा है कि नहीं। कि उस समय मैंने जो भी बोला कि हाँ ये चीज थंबनेल बना लो, कैनवा से तुमको थंबनेल बनाना है, या फिर ये चीज है ऐसा करो, रिकॉर्डिंग में कैमरा थोड़ा सा पास रखो दूर रखो, ये बहुत सारे छोटे छोटे चीजें होते हैं। तो वो तुमने इम्प्रूव किया, तो इसलिए मैं वो सारा चीज बताते गया। वही मतलब उसको तुम लेती कि नहीं सर तो टोकते रहते हैं मुझे, मिस्टेक्स बताते रहते हैं, गलतियां ढूंढते रहते हैं, तो वो तो आगे मैं बताता नहीं, है ना। तो सिमिलरली वैसे ही है, कोई भी चैनल स्टार्ट करता है तो एक दिन में नहीं सीखेगा, बहुत सारी चीजें खुद से सीखनी है। और आसपास कोई भी यूट्यूबर है तो उनसे आप सीख सकते हैं, पूछेंगे तो आपको जरूर बताएंगे। बट एक मोटा मोटी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मतलब जो भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे होंगे, स्पेशली एजुकेशनल चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, फिर घर में बैठ करके जो रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके लिए जो है कोई भी मोबाइल कैमरा होता है उसमें जितना भी माइक होता है, एक्सटर्नल माइक आप लगाएंगे तो उसमें काम नहीं करेगा जो आपके इनबिल्ट कैमरा आता है। तो उसके लिए आपको एक ओपन कैमरा ऐप लगाना पड़ेगा, फ्री है गूगल प्ले स्टोर में, वो डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद एक्सटर्नल माइक लगा लीजिए, उसमें उसका जो सेटिंग होता है एक्सटर्नल माइक में सेट कर लीजिए, तो आपका बढ़िया वो कैमरा जैसा हो जाएगा। प्लस कोई भी एक ट्राइपॉड स्टैंड खरीद लीजिए, वो आपका 500 रुपए से लेकर के 1500 तक आ जाएगा जो भी है। और उसके बाद फिर लाइटिंग का है, लाइटिंग की सुविधा आपके पास अच्छी होनी चाहिए। कई बार जैसे कि बोर्ड में आप पढ़ाते हैं, तो बोर्ड में पढ़ाने पर सबसे ज्यादा टीचर्स को प्रॉब्लम आता है रिफ्लेक्शन की, बोर्ड में रिफ्लेक्शन आता है। तो उसके लिए क्या करना है, एक बोर्ड के जस्ट ऊपर में ट्यूब लाइट लगा लीजिए 1 फीट ऊपर में। उसके बाद फिर जो भी 2 लाइट लगा रहे हैं आप स्टैंड लाइट, तो उसका फोकस आप सीधा छत पे कीजिए, सीलिंग पे कीजिए। अदरवाइज इधर फोकस करेंगे तो आपके बोर्ड में रिफ्लेक्शन आएगा, बट छत पे करेंगे आपको तो वो क्या हो जाएगा, डिफ्यूज होकर के लाइट ऊपर से आएगा, आपका लाइट भी बढ़ जाएगा, बोर्ड में रिफ्लेक्शन भी नहीं आएगा। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स है। एडिटिंग है तो एडिटिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज कर लीजिए, जैसे मैं वंडरशेयर फिल्मोरा यूज करता हूँ, वैशाली भी वही यूज करती है, हम लोगों ने परचेस किया हुआ है वंडरशेयर फिल्मोरा। तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं, उसका भी ज्यादा कुछ रेट नहीं होता है। एजुकेशनल वाला लेंगे तो 4000 के अराउंड आ जाता है, बट वो भी आप नहीं लेना चाहते तो आप ट्रायल वर्जन आता है तो वो यूज कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं। इवन विंडोज आपको फ्री में एडिटिंग सॉफ्टवेयर देता है, विंडोज का जो एडिटर होता है, या फिर विंडोज मूवी मेकर है, उसमें मैं इनिशियली यूज करता था, विंडोज के साथ फ्री होता था। तो आप ढूंढेंगे तो बहुत सारा आपको मिल जाएगा। मीनवाइल आपको यदि कोई आप यदि आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है और स्पेसिफिक किसी टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप वैशाली को इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, फिर मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, तो हम लोग रिप्लाई कर देंगे आपका क्वेश्चन। यदि हमारे बस का है, वो चीज हम लोग जानते हैं, तो हम लोग जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, तो वहां से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच सर। आई स्टिल रिमेम्बर सर ने मेरे को एक बहुत ही अच्छी सीक्रेट टिप दी थी जब मैंने चैनल स्टार्ट करा था, और मेरा ना बहुत बार वो जो बोर्ड है वो सेट नहीं होता था, बोर्ड कभी आगे हो जाता था कभी पीछे हो जाता था। तो सर ने मुझे बताया था कि जो अपना ट्राइपॉड है उसे नीचे रखिए और परमानेंट मार्कर से नीचे सर्कल्स बना दीजिए, तो ये कभी आपको ये वाली प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और ये वाली टिप आपको कहीं नहीं मिलेगी। बहुत सारे टीचर्स भी ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी इंस्पायर होने वाले हैं, तो आपके लिए इतनी सारी टिप्स मिल गई हैं। सर एक और इशू है, जो लोग स्टार्ट करते हैं चैनल, उन लोगों को एक चीज माइंड में रहती है कि कितना पैसा लगेगा एक चैनल स्टार्ट करने के लिए। तो आप बताइए कि मोटा मोटा कितना लगता है कि एक बंदा स्टार्ट कर ले एटलीस्ट चैनल, टीचर हो या स्टूडेंट जो भी है। चैनल स्टार्ट करने के लिए वैसे तो देखेंगे, जैसे टीचर है, बोर्ड लगाना है तो 1000 रुपए का बोर्ड आता है, 4x3 का, 4 4 फीट ऐसे चौड़ाई और
उसकी ऊंचाई 3 फीट, 1,000 का वो बोर्ड आ जाता है, 800 रुपए का माइक आ जाता है, एक ट्राइपॉड स्टैंड आ जाएगा 1500 का, और लाइट वगैरह करके, मतलब लाइट आ जाता है, दोनों लाइट करके आ जाता है लगभग 4,000, मतलब 4,000 में बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 8,000 में बहुत अच्छा स्टूडियो सेट हो सकता है, 8,000। और उतना भी खर्चा नहीं करना चाहते तो आपका घर का लाइटिंग सही है, आजकल जैसे कि ओपन कैमरा है, तो ओपन कैमरा में जब आप स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट करने के बाद आपका मोबाइल ठीक ठाक है, मतलब सबके पास आजकल 15,000 के राउंड का मोबाइल होता है, तो उसमें एक्सपोजर लॉक करने के बाद एक्सपोजर को थोड़ा इंक्रीज कर दोगे तो आपके पास जो लाइट है उसी में आपका कैमरा अच्छा काम करने लगेगा, आपको अलग से लाइट परचेस करने का जरूरत नहीं है। तो 800 का आपका माइक आ जाएगा, और ट्राईपोड अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपीज में आ जाएगा, और व्हाइट बोर्ड लगा रहे हैं तो वो 1,000 रुपीज का, तो 2,200 3,000 में आपका काम बन जाएगा। तो 3,000 में एक इंसान एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकता है। हाउ अमेजिंग दिस इज। और जो टीचर्स हैं, अगर आप भी सर का फॉर्मूला नंबर 1, जो प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व करना चाहते हैं, तो 3,000 दिस इज द अमाउंट यू नीड। और अगर सर बहुत सारे लोग हैं जो अब ये चाहते हैं कि उन्हें ये पता लग जाए कि कितना वो अर्न कर सकते हैं इन फ्यूचर, अगर वो अभी बनाते हैं चैनल तो इन फ्यूचर कितना मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं यूट्यूब से, आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कि कितना हो सकता है, उनसे उन्हें मोटिवेशन मिले। एक्चुअली में ये अर्निंग जो है चैनल टू चैनल वेरी करता है, मींस आपका इंग्लिश में चैनल है या फिर हिंदी में, मतलब कितने कंट्रीज में आपका रीच है। मैं अपने चैनल के अकॉर्डिंगली बता देता हूँ, मेरे चैनल में 1400 टू 1500 का जो व्यूज होता है उसमें $1 आता है, तो अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, मान लो आपके पास 15 लाख व्यू आते हैं, तो आपको $1,000 आ जाएगा, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 74-75,000 रुपीज मान सकते हो आप 15 लाख व्यू पे। तो ऐसा ही लगभग सभी के साथ ही होता है, किसी का 1600-1700 व्यू पे आ जाता है, किसी का हो सकता है 1300-1400 व्यू पे आ जाए, तो अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही होता है। बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं है, लेकिन इससे पढ़ा करके जो खुशी मिलता है, मीन्स हम लोग एक 60 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अभी अभी यहाँ पर हम लोग 1,80,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इवन वैशाली भी 17,000 प्लस बच्चों को पढ़ा रही है। तो उसका जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, उसको फिर पैसे से कंपेयर नहीं कर सकते है ना। तो वही चीज है, मोटिवेशन इज हैप्पीनेस नॉट मनी, बट ऑब्वियसली मनी आता है तो अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, वो उसमें एड ऑन ही है वो, और उसको एड ऑन लेकर ही चलो। और ट्रू। कभी भी उसको मनी को प्राइमरी बनाने की कोशिश करोगे तो यूट्यूब में इतना ज्यादा कुछ अर्निंग नहीं है, कि जितना हम लोग मेहनत करते हैं उतनी अर्निंग तो है ही नहीं। तो फिर आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाओगे और अल्टीमेटली अपना यूट्यूब चैनल आप बंद कर दोगे, वीडियोस डालना बंद कर दोगे। ट्रू सर, जब मैंने चैनल स्टार्ट करा था मैं बिल्कुल फ्रेशर थी, आई डिडंट नो एनीथिंग। ये नहीं पता था कि स्पेस से बोलना है। सर ने मुझे बहुत चीजें बताई कि इस स्पेस से बोलो, अभी बहुत स्लो हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही रहा है। जैसे मेरे पास तो मेंटर थे, सर मुझे गाइड करते रहते थे। अगर कोई नहीं भी कर रहा, आपके पास इतने स्टूडेंट्स के फीडबैक आते हैं, इतने लोगों के फीडबैक आते हैं, दैट यू नो कि इस टाइम पर मैं यहाँ गलत जा रहा हूँ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होती है, आपकी जो रीच बनती है लोगों में, लोगों के साथ जो इंटरेक्शन होता है, कनेक्शंस बनते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन जस्ट मनी। सर, आपकी एक जो वीडियो बहुत फेमस हुई है वो थी हाउ यू मैनेज व्हाइल यू वर कोविड पॉजिटिव। सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था जब आप कोविड पॉजिटिव थे? वैशाली जी लर्निंग वाले स्टूडेंट्स को भी पता लगना चाहिए कि कैसे सर ने अपना कोविड के दौरान अपना टाइम निकाला, कैसे अपने कोविड के दौरान में सारी चीजें मैनेज करी। ही वॉज अलोन एट हिज होम, और क्या खाया, क्या चीजें उन्होंने उस टाइम पर करी जिससे कि सर कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव इतना जल्दी आ गए थे, रिकवर करे इतनी जल्दी। एक्चुअली में क्या हुआ था, वो वीडियो पता नहीं क्यों वायरल हुआ, मुझे तो पता ही नहीं कि वो अभी आज की डेट में 30 लाख प्लस व्यू पे है। सर, और उसमें एक सीक्रेट टिप था, इसलिए वो वायरल हुआ, वो लोगों को बहुत सिक्योरिटी हेल्प कर रहा पता था। नहीं, मतलब वो वीडियो बनाने में मैंने, मतलब वो ऐसा वीडियो है जिसको बनाने में जिंदगी में मैंने सबसे कम मेहनत किया। और वो भी वीडियो एक प्रॉब्लम को लेकर के बनाया गया था। प्रॉब्लम ये था कि जैसे तुमको भी पता है कि हम लोग के मतलब इंस्टीट्यूट में बहुत सारे लोग पॉजिटिव आ रहे थे, और मैं वन ऑफ दी फैकल्टी था जो बहुत स्टार्टिंग फेज में पॉजिटिव हो गया था। बहुत स्टार्टिंग में मेरे कोविड-19 हो गया था, 31 मार्च को हुआ था, जब सेकंड वेव स्टार्ट ही हुआ था उस समय।
तो उसमें क्या हुआ कि लोगों के फोन आते थे मेरे को कि अब बाकी लोग को हुए तो ऑब्वियसली मेरे को पहले हुआ है, और सब लोगों में मतलब जान पहचान भी है, सब लोग पहचानते भी है, और तीसरा चीज है कि मैं फार्मेसी फील्ड से हूँ, इसलिए लोग इसलिए भी पूछते हैं। तो लोग पूछते कि क्या करना है, कैसे करना है। मतलब एक तरीके से कोविड-19 होने पर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन तो हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। तो बात करना चाहते थे बहुत लोग, और उस समय मैं इस कंडीशन में नहीं था कि मैं इतने सारे लोगों से बात करूं कि 50 लोगों का कॉल अटेंड कर पाऊं। तो मैं कॉल अटेंड करता नहीं था लोगों को। फिर मैंने सोचा कि जो कोविड-19 के टाइम में मैं 10 दिन घर पे रहा, घर पे मतलब कुछ नहीं करता था, मैं लिटरली अपना खाना जैसे तैसे बनाता था, उसको खा लेता था और सोता था, बस यही मेरा काम था। तो 10 डेज के बाद मेरे को जैसे ही ठीक लगा, मैं सबसे पहले काम यही किया कि भाई जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, बैठो, कैमरा ऑन करो, उसको बोल दो, ताकि लोगों को मैं वो वीडियो का लिंक भेज दूं कि कोई पूछे तो हाँ ये देख लो, 20 मिनट तुम्हारा काम हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने वो वीडियो बनाया था, और लिटरली एकदम रॉ वीडियो है, उसमें कुछ नहीं, मतलब कैमरा ऐसे ही स्टार्ट करके मैंने बोलना चालू कर दिया, जो जो मेरे साथ 10 दिन में हुआ, जितने लोगों के फोन आए, मतलब फोन आते थे उसको कैसे अवॉइड करना है, वो मेरा एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं कि वो मेरा मेथड है तो वही सही है, और दूसरे मेथड भी हो सकते हैं, बट मैंने जो फॉलो किया वही चीज उसमें शेयर किया। उसके बाद फिर न्यू टीम ने उसको वायरल कर दिया, और उसके बाद फिर मेरे को लगा यार नहीं, इसमें तो लोगों को जरूरत है, वाकई में जरूरत है। और मेरे को हजारों कमेंट आए उसमें, कि अभी भी आते हैं कमेंट की वो वीडियो देखने के बाद लोग ठीक हुए। फिर उसके बाद फिर कैसे खाना है, कैसे हमें रहना है, पोस्ट कोविड कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये सारा चीज का मैंने डिस्कशन के लिए लगभग मैंने कोविड-19 से रिलेटेड 30+ वीडियोस बनाए हैं, 30 से ज्यादा वीडियो। अगर मैंने सोचा कि कोविड ने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं कोविड-19 को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, इसलिए मैंने सारे मतलब मुझे भी जानने की इच्छा थी कि भाई आरटी-पीसीआर क्या होता है, कि कौन सा टेस्ट हमें कराना चाहिए, प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उससे क्या बेनिफिट हो सकता है, सारे साइंटिफिकली मैंने पढ़ लिए। जब पढ़ लिए तो उसके वीडियोस भी बना लिए, और वो सारे वीडियोस अच्छे से चले भी, मतलब बहुत व्यूज आए उस समय, और बहुत सारे सब्सक्राइबर भी मिले। तो मतलब अल्टीमेटली मेरा भी बेनिफिट तो हुआ ही, साथ में लोगों का भी बहुत बेनिफिट हुआ। दैट इज तो ट्रू, ये दैट चीज इज था। ट्रू। सर, आपने उस दौरान पे वीडियोस बनाए हैं यूट्यूब के लिए, यू वर कोविड पॉजिटिव, और उसके साथ आप कॉलेज का भी काम कर रहे थे। सर इज हेड ई लर्निंग इन केआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और सर पूरा काम मैनेज कर रहे थे। तो सर आपने काम कैसे मैनेज करा, साथ में यूट्यूब मैनेज कैसे करा व्हेन यू वर कोविड पॉजिटिव? एक्चुअली में जब मैं कोविड पॉजिटिव हुआ था तो उस समय तो फिर मैं कॉलेज में बता दिया था, तो मैं क्लासेस वगैरह ले रहा था। मैं क्लासेस वगैरह लेने में उतना ज्यादा एनर्जी नहीं लगता है। मीनवाइल यहाँ पर भी मेरा यूट्यूब चैनल थोड़ा हेल्प किया मेरे को, क्योंकि बहुत सारे मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मीन्स वही चीज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ही तो पढ़ा रहा हूँ उसको भी। तो बच्चों को मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिखा देता था ऑनलाइन। उसके बाद फिर बोलता था कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप पूछो। तो बच्चे प्रॉब्लम पूछते थे, तो मैं उनको जवाब दे देता था, जो भी उनका क्वेरी रहता था। तो इससे क्या हुआ, मेरे को वो 50 मिनट है तो उसमें 30 मिनट नहीं बोलना पड़ा, केवल 20 मिनट बोलना पड़ा। तो मेरी ज्यादा एनर्जी नहीं जाती थी, तो वहां मेरा एनर्जी सेव हो जाता था। प्लस उस समय कॉलेज से उतना ज्यादा वर्क नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि मैं कोविड पॉजिटिव था। तो केवल क्लास ले रहा था। उसके बाद 10 दिन बाद जैसे ही मैं मतलब निगेटिव का तो टेस्ट मैंने कराया नहीं था इमीडिएटली 10 दिन बाद, बट मैं रिकवर कर लिया था। तो रिकवर करने के बाद बाकी जो काम है उसको धीरे धीरे करके करता गया। सर, जैसे आपको तो पता लग गया था, इनिशियली आपको सिम्टम्स आए थे और आपको पता लग गया था कि आप कोविड पॉजिटिव थे। हमारे इतने सारे कलीग्स ऐसे भी थे जिनको कोई सिम्टम्स नहीं आए थे, कॉलेज में उनका टेस्ट हुआ था तो उन्हें पता लग गया था कि अरे हम तो कोविड पॉजिटिव हैं। तो सर ये कैसे, हम्म। मतलब उनका तो टेस्ट हो गया बाय चांस कॉलेज में, बाकी अगर किसी इंसान का टेस्ट ना हो तो उसे कैसे पता लगे कि उसे एसिम्टोमेटिक कोविड है, और अगर है तो उसे क्या करना चाहिए? अगर एसिम्टोमेटिक है तो लोग बहुत ज्यादा हल्के में ले लेते हैं कि ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं तो बहुत ज्यादा इम्यून हूँ, मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा है कि उसे कुछ नहीं करना चाहिए और वो ठीक रहेगा? देखो, एसिम्टोमेटिक कोविड है किसी को, तो उसको तो कुछ सिम्टम आया ही नहीं ना, तो नॉर्मल ही रहेगा, उसको तो पता ही नहीं लगेगा कि वो उसको कोविड है भी करके। और लिटरली देखा जाए तो उसको कुछ मतलब ऐसा कुछ ज्यादा होने वाला भी नहीं है, एसिम्टोमेटिक है। जब तक कोई सिम्टम नहीं आएगा तो कैसे पता लगेगा। मीनवाइल यदि कोई बंदा ट्रेवल किया हुआ है, या फिर कहीं भीड़ भाड़ एरिया में गया हुआ है, या फिर किसी कोविड-19 पेशेंट से मिला हुआ है, उसको डाउट है कि उसको कोविड-19 हो सकता है,
तो उस कंडीशन में उसको कोविड-19 का टेस्ट कराना चाहिए, और टेस्ट कराने के बाद यदि उसका पॉजिटिव आता है, वो एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, बट पॉजिटिव आ गया तो उसको जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, गवर्नमेंट का जो रूल्स है 14 डेज क्वारंटाइन वाला, वो सारा चीज, आइसोलेशन वाला, वो सारा चीज उसको फॉलो करना चाहिए, ताकि और लोगों को स्प्रेड ना हो। ठीक है, अदरवाइज यदि किसी को सिम्टम भी नहीं है, उसने टेस्ट भी नहीं कराया, तो उसको कोई भी नहीं पता लगा सकता कि उसको कोविड-19 है। दैट उसमें इज कोई मेथड ही नहीं है। ये तो सही बात है। सर, अगर जैसे आपके कोविड पॉजिटिव हुआ थे आपका, और आपको आपने बताया कि आपका रिकवर इतनी जल्दी हो गया था, सो उसके बाद मतलब 10 डेज के बाद, रिकवर होने के बाद, क्या कुछ सिम्टम्स आए थे? हाँ, 10 डेज रिकवरी के बाद वीकनेस थोड़ा सा था, बहुत ज्यादा वीकनेस तो मुझे नहीं था, बट मेरे को मेजर 3 प्रॉब्लम आया था। पहला जो है, कुछ टेस्ट नहीं आ रहा था, तो मैं 20-25 दिन तक करेला ही खा रहा था, क्योंकि करेले का ही टेस्ट आता था। अदरवाइज आप आलू खा रहे हो या फिर अंडा खा रहे हो या फिर चिकन खा रहे हो, कुछ फर्क नहीं है, सब वैसा ही टेस्ट आता था। तो करेले का टेस्ट आ रहा था, मैं 20-25 दिन तक करेला खा रहा था, तो वो चीज था एक। दूसरा, स्मेल नहीं आ रहा था। स्मेल नहीं आने की वजह से क्या होगा ना, जब आप घर में अकेले रहते हो ना, और आपको स्मेल नहीं आता, तो बहुत सारी चीजें आपको पता नहीं लगेगी। मतलब उससे एक तरीके से सोचो तो बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। मान लो, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आपके घर में गैस लीक कर रहा है, तो गैस का स्मेल आ जाता है, लेकिन कोविड-19 में आप अकेले हो तो आपको स्मेल ही नहीं आएगा। तो कुछ प्रॉब्लम, हादसा भी हो सकता है उससे। और बहुत सारा चीज, मतलब कुछ चीज सड़ गया या फिर कुछ हो गया, तो आपको स्मेल ही नहीं आएगा, वो प्रॉब्लम हो सकता है तो वो चीज मेरे को होता था, मतलब मेरे को स्मेल ही नहीं आ रहा था, तो ये दो चीज हो गया। तीसरा प्रॉब्लम आया, वो मेरे को रिकवरी के बाद आया, मेन खांसी का। बहुत ज्यादा ड्राई कफ होता था, बहुत ज्यादा खांसी होती थी, और इनिशियली तो बहुत ही ज्यादा होती थी, मतलब कुछ भी कर लो कम नहीं होता था। तो आपको इधर पानी पीना है तो पानी भी कितना भी पियोगे, आप जो कप ड्रॉप्स वाले जो होते हैं, हनी टेस्ट वगैरह, वो ले सकते हो, उससे थोड़ा सा कम होता है, बट उसको ठीक होने में टाइम लगता है, क्योंकि जब वायरस आपके बॉडी से जाता है तो वहां पर कुछ ना कुछ स्कार छोड़ करके जाता है, कुछ हार्मफुल, मतलब वहां पर नुकसान करके जाता है आपके जो भी गले में है उसमें, इसलिए उसको ठीक होने में टाइम लगता है। तो वो ठीक होने में मुझे मतलब रिकवरी के बाद भी 15-20 दिन लग गए थे, तो वही प्रॉब्लम आया था। और इस पे भी मैंने वीडियो बनाया था कि भाई, जो आपको खांसी हो रहा है तो उसको कैसे ठीक करना है, इस पे भी मैंने बनाया था, क्योंकि और वो मैं ठीक होने के बाद बनाया था, क्योंकि मेरा ही नहीं ठीक हुआ तो मैं लोगों को क्या बताऊंगा, है ना। तो उसमें गुनगुना पानी पीना, हल्दी डाल के पीना, ये सब चीज करेंगे, बहुत सारा चीज है, तो उससे बेनिफिट होता है। तो ये मेरे को ये 3 प्रॉब्लम हुए थे, बट ऐसा बहुत ज्यादा वीकनेस जैसे बहुत लोग को होता है, वैसा तो मेरे को नहीं हुआ था। सर, बट जैसे बहुत सारे कलीग्स को तो बहुत ही वीकनेस, मतलब 2-3 महीने तक उन्हें बहुत ही वीकनेस रही थी, लंग्स में प्रॉब्लम रही थी उन्हें। तो जो कोविड-19 के बाद जो वीकनेस आती है, उसको कैसे ओवरकम करें? एक्चुअली में लोग क्या करते हैं ना, वीकनेस बहुत ज्यादा क्यों बढ़ जाता है, जब कोविड-19 होता है तो उनको सीधा रेस्टिंग फेज में चले जाना चाहिए। मतलब थोड़ा सा भी हैवी वर्क नहीं करना चाहिए, वही काम करो जो जरूरी है, अदरवाइज मत करो। भाई, जिंदा रहोगे तब तो आगे अच्छे से करोगे। तो बहुत लोगों ने मिस्टेक क्या किया ना, उस समय जब कोविड-19 हुआ है तो स्टार्टिंग में ठीक से रेस्ट नहीं लिया। ठीक से रेस्ट नहीं लिया तो उसको रिकवरी में ज्यादा टाइम लगेगा, रिकवरी में ज्यादा टाइम मतलब वो वीकनेस लंबा टाइम तक खींचेगा। तो वही चीज है, अब यदि आपको कोविड-19 हो गया है तो भाई, भगवान ने ये सोच करके चलो कि आप रेस्ट नहीं ले रहे थे, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई, जिसकी वजह से आपको कोविड-19 हुआ। अब भगवान ने आपको मौका दिया है कि आप सो जाओ, रेस्ट लो। ठीक है, तो ठीक से पहले तो सो जाओ। ठीक है, 10 दिन तक तो उठो ही मत, सो जाओ बस, खाते पीते रहो बढ़िया से, तो बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं आएगा। और वीकनेस यदि आ गया है तो उस समय फिर क्या है, मतलब पहले 10 दिन रेस्ट करने के बाद थोड़ा ठीक हो सकते थे, बाद में वही रेस्ट आपको 30 दिन तक लेना पड़ेगा, या फिर उससे भी लंबा हो सकता है। खाना वाना अच्छा खाना पड़ेगा। तो इसका एक ही इलाज है कि भाई, रेस्ट लेना है। अब कोविड-19 होने के बाद कोई सोचेगा कि मैं तो अब रिकवर कर गया हूँ, 15 दिन हो गया, मेरे 14 दिन हो गया, जैसे बाहुबली बन गया टाइप का, उसमें बहुत सारा हैवी वर्क कर देगा कि मतलब जियो रे बाहुबली गाना गाने लगेगा और ऐसे नाचने लगेगा, तो उसको वो फिर से वीक हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा जैसे पुराने कंडीशन में था। तो मतलब ये टाइम लगता है उसमें। ट्रू, ट्रू। तो वो चीज सबको ध्यान देना पड़ेगा।
वही समझदारी तो इसी में ही है जो चेंजिंग सरकमस्टांसेस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। जैसे सर ने देखा कि कोविड-19 की प्रॉब्लम है लोगों के माइंड में और सर ने लोगों की हेल्प करने के लिए 30 वीडियोस बनाई। सो ये था चेंजिंग डायनामिक्स के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना। अगर खुद को कोविड-19 हो रहा है, वीकनेस आ रही है, तो खुद को चेंज कर लो। ये नहीं है कि उसके जो अपना पुराना शेड्यूल है उसी के अकॉर्डिंग चले जा रहे हैं और खुद को वीक कर रहे हैं। दिस शुड नॉट बी डन। सो सर, मेरे को अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर पता है, बट बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं आपकी इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद कि आपने प्लाज्मा डोनेट करा था। हाँ, प्लाज्मा डोनेट मैंने किया था एक्चुअली में। एमसीए में हमारे प्रशांत सर हैं, कलीग है हमारे, तुमको भी पता है, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो उनको जरूरत थी तो मैंने प्लाज्मा डोनेट किया था। और भगवान की कृपा से बहुत अच्छे से क्योर भी हो गए, अभी बढ़िया स्वस्थ हैं। और लिटरली बोला जाए तो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए ना बहुत सारे हडल्स है कि आप, मैं तो खुद कोविड पॉजिटिव हुआ था, अकेला था, तो फैमिली को ये लग रहा था कि वहां पर हॉस्पिटल में जाओ तो वापस से पॉजिटिव ना हो जाओ। प्लाज्मा डोनेशन का जो प्रोसेस है उसमें कंप्लीट 3 आवर्स लगते हैं, क्योंकि पहले आपका टेस्टिंग होता है, आपके में पर्टिकुलर एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं है वो देखते हैं, सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है कि नहीं है वो देखते हैं। यदि सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है तब आप एलिजिबल हो। तो इस प्रोसेस में कम से कम 2 घंटा लगता है। उसके बाद प्लाज्मा डोनेट करने में 40 मिनट लगता है। तो ये सारे बहुत सारे चीजें हैं। तो अल्टीमेटली मेरे विचार से देखा जाए तो कोई भी नॉर्मल बंदा, मतलब उसका जान पहचान का नहीं होगा तो किसी दूसरे के लिए इतना मेहनत नहीं करेगा, वो भी जब वो बीमारी से उठा हुआ होगा। जब उसका कोई जानने वाला होगा, बहुत अच्छा फ्रेंड होगा, तभी वो कर पाएगा। तो मैंने तो प्लाज्मा डोनेशन किया था, बट अभी आईसीएमआर ने बोला कि प्लाज्मा डोनेशन उतना इफेक्टिव नहीं है करके, तो उसको अब रिकमेंड नहीं करते। प्लाज्मा डोनेशन की अब जरूरत नहीं है, लोग ऐसे ही ठीक हो रहे हैं। बट उस समय था, आईसीएमआर के गाइडलाइंस में था कि प्लाज्मा थेरेपी यूज हो रहा था, तो मैंने डोनेट किया था। सर, और वैक्सीन के बारे में है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि वैक्सीन का बहुत ही बड़ा इस टाइम पर एक इशू बना हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स बिफोर एंड आफ्टर वैक्सीनेशन। आधे से ज्यादा लोग तो अभी डरे हुए हैं कि वैक्सीनेशन करवाना है नहीं करवाना। सो अभी अगर वो चलो करवाने जा रहे हैं, उससे पहले और बाद में उन्हें क्या करना चाहिए? एक्चुअली में वैक्सीनेशन के लिए आप जब जा रहे हैं तो आप देखो कि आप स्वस्थ हो कि नहीं हो। मतलब ऐसा तो नहीं कि आपको फीवर वगैरह कुछ आया हुआ है। अभी करेंटली देखोगे तो कोल्ड एंड फ्लू चल रहा है। नॉर्मल जो है कोल्ड है, फ्लू है, या फिर आपको कोविड हुआ है तो उसके बाद आपको सफिशिएंट गैप लेना चाहिए, ठीक है। एज पर आईसीएमआर जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली गैप लेना चाहिए। तो मैंने तो मोर देन 60 डेज का गैप लिया था आफ्टर रिकवरी। तो वो सारे चीज गैप लेना चाहिए, और आपको वैक्सीन तो लेना चाहिए। यहाँ पर एक और चीज है जो करेंटली चल रहा है, वैक्सीन वैक्सीन शेडिंग। वैक्सीन शेडिंग की समस्या, कोविड-19 वैक्सीन के जो शेडिंग है इसका अफवाह फैला रहे हैं लोग। वैक्सीन शेडिंग क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। उससे पहले वायरस शेडिंग क्या होता है वो मैं पहले बताता हूँ। वायरस शेडिंग ये है कि किसी पर्सन को वायरल इन्फेक्शन हुआ, जैसे मुझे कोविड-19 हुआ, अब मेरे थ्रू किसी दूसरे पर्सन को वायरस इन्फेक्ट कर सकता है। मैं मेरे मेरे खांसने या फिर छींकने से जैसे वायरस जा सकता है, दूसरे पर्सन में गया तो वो दूसरा पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ये होता है वायरस शेडिंग। इसी के थ्रू हम लोग का जो ये है, इसी के कारण जो कोविड-19 है हुआ है, पूरा फैला है। अब लोग ये फैला रहे हैं कि कोविड-19 का जो वैक्सीन है उसमें भी तो वायरस है, तो वो दे रहे हैं किसी को, कोविड-19 का वैक्सीन दे रहे हैं किसी को, तो वायरस चला गया, उसकी वजह से उसमें इन्फेक्शन आ गया पर्सन में। और जो पर्सन जो वैक्सीन लिया है वो अब दूसरों को इन्फेक्ट करेगा ड्यू टू दैट वैक्सीन। इसको बोलते हैं वैक्सीन शेडिंग। वैक्सीन शेडिंग, ठीक है। तो ये वैक्सीन शेडिंग कोविड-19 के वैक्सीन में पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो जो वैक्सीन शेडिंग का कॉन्सेप्ट है वो केवल लाइव वैक्सीन के साथ होता है, जो जिंदा वायरस होते हैं जिसमें हम लोग यूज करते हैं टाइफाइड वगैरह में, उसमें पॉसिबल हो सकता है, बट वो भी नेग्लिजिबल, बहुत कम होता है। तो अभी तक दुनिया में कोई भी ऐसा वैक्सीन नहीं है कोविड-19 का जो लाइव वैक्सीन हो, ऐसा कोई अप्रूवल ही नहीं मिला है। इंडिया में जो 3 वैक्सीन यूज हो रहा है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5, तीनों ही लाइव वैक्सीन नहीं है। जो कोवैक्सीन जो है आपका इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, कोविशील्ड और स्पुतनिक 5 वायरल वेक्टर है, तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो वैक्सीन शेडिंग का तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब आता है कि आपको कौन सा वैक्सीन लेना है, तो तीनों ही वैक्सीन इफेक्टिव है आपके पास में।
जो भी वैक्सीन मिल रहा है वो जल्दी से जल्दी ले लीजिए, क्योंकि जितना जल्दी वैक्सीन लेंगे तो अभी देखेंगे तो कि लैक्टेटिंग मदर है या फिर बच्चे हैं उनको तो वैक्सीन नहीं दे सकते। तो क्या होगा, बाकी सबको वैक्सीन देंगे ना घर में। जैसे कि घर में 4 लोग हैं, उसमें से एक बच्चा है और एक लैक्टेटिंग मदर है, तो वो दोनों को वैक्सीन नहीं दे सकते, बाकी 2 लोग वैक्सीन ले लेंगे। तो क्या होगा, लैक्टेटिंग मदर और जो बच्चा है वो लोग तो बाहर नहीं जा रहे होंगे घर से बाहर कौन जा रहा होगा, जो एडल्ट है दूसरे लोग वो लोग जा रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी वैक्सीन लिया है, तो इन्फेक्शन वहीं बाहर से ही तो आएगा। तो इसी तरीके से जब ज्यादा से ज्यादा लोग का वैक्सीनेशन हो जाएगा तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी मीन्स मान लो मैं वैक्सीनेटेड हूँ, मेरे कांटेक्ट में मेरे घर वाले आए, ठीक है, तो मेरे में कोई इन्फेक्शन नहीं है तो मेरे थ्रू उनके में नहीं जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोग को हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए केवल अपने आप को नहीं बचा रहे, हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स को भी बचा रहे हैं। तो वैक्सीन केवल हमारे लिए नहीं है, हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी है। इसलिए सबको प्रमोट कीजिए वैक्सीनेशन के लिए, मेरा तो यही मानना है। ट्रू ट्रू। सर जैसे कुछ कंट्रीज में क्या है कि कोविड-19 की अगर दोनों वैक्सीनेशन करवा लिया है, दोनों डोजेस हो चुकी हैं, उसके बाद वो पुराने रूटीन पर आ गए विदाउट मास्क, नो कोविड प्रोटोकॉल। तो क्या आपके अकॉर्डिंग क्या ये ठीक है या इंडिया में भी ये प्रैक्टिस करा जाना चाहिए? नहीं 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 नहीं, ये चीज नहीं कर सकते, क्योंकि जो कोविड-19 है आप वैक्सीन लगवा लिए हो तो मतलब जरूरी नहीं है कि आप 100% सेफ हो, क्योंकि जो वायरस है वो उसमें म्यूटेशन भी तो हो रहा है। तो वैक्सीन लगवाने पर मतलब आप सेफ तो हो एक हद तक, ठीक है। वैक्सीन नहीं लगवाओगे आप 100% वायरस के उसमें आ सकते हो। वैक्सीन लगवा लिए, मान लो 70 या फिर 80% आप सेफ हो, लेकिन फिर भी 20 या फिर 30% तो चांसेस है ना होने का। तो उसके लिए तो आपको मास्क और ये सब चीज लगाना जरूरी है। इवन आप देखोगे तो कॉमन कोल्ड एंड फ्लू है, तो अभी देखोगे तो कॉमन कोल्ड एंड फ्लू उतने ज्यादा लोगों को नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सब लोग हाथ धोने की आदत है, सबको मास्क पहनने की आदत है, तो उतना फैल नहीं रहा है। ठीक है, अभी देखा है कि मतलब जब से कोविड-19 आए हैं और दूसरे डिजीज मलेरिया, टाइफाइड, कोल्ड एंड फ्लू, ये सब सुनाई नहीं दे रहा है। डेंगू सुना है हमने, दिल्ली में तो इतना हर साल डेंगू आता है, इस साल तो सुनाई नहीं दिया न्यूज में, मैं तो नहीं सुना। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये साफ सफाई और ये सब चीज करना लोग सीख गए हैं ड्यू टू दैट कोविड-19, इसलिए बाकी बीमारियां कम हो गई हैं। तो ये चीज हमें मतलब फ्यूचर में भी फॉलो करना चाहिए। कोविड-19 के अलावा भी कोई चीज हो सकता है, मतलब आगे और दूसरा हो सकता है, या फिर जो एग्जिस्टिंग डिसीज है वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, ये सारा चीज फॉलो करने। तो ट्रू वो चीज मास्क और ये चीज लगाना, सैनिटाइजर, ये सब तो करना चाहिए, इसको रोकना नहीं चाहिए। मतलब प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करें। ट्रू। हर चीज से कुछ पॉजिटिव लेना। मैंने जितना भी सर को ऑब्जर्व करा है, ये सर का बिहेवियर है। हर चीज में सर हमेशा पॉजिटिव देखते हैं, एंड यहाँ पर भी बीमारी में पॉजिटिव देखना कि इस बीमारी से दूसरी बीमारियां कम हो गई हैं। सर ये आप भी कर सकते हैं सर। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप हो रहा है, जो मैं बस बता रहा हूँ। नहीं सर, वही ब्रेन, अब कोविड-19 में डिप्रेशन में लोग क्यों थे? क्योंकि उनका ब्रेन उस टाइम पर उस तरीके से वर्क कर रहा था। अगर आपकी तरह वर्क कर रहा होता तो वो भी 10 दिन में ठीक हो गए होते। हर चीज में पॉजिटिव देखना, इट्स एन आर्ट। तो और वो जो आपके पास आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। आई स्टिल रिमेम्बर स्टार्टिंग में जब मैं सर से मिलती थी, तो सर जब भी वीडियो रिलीज कर रहे होते थे, ही यूज्ड टू से कि ये 1 मिलियन जाएगा हर वीडियो के लिए। आई यूज्ड टू फील कि कोई इंसान इतना पॉजिटिव कैसे हो सकता है हर चीज के लिए। दिस जाए इज या ना जाए बोलते रहो, सोचते रहो। नहीं, और फिर सर जाती भी है, फिर व्हेन यू थिंक देन ओनली इट हैपेंस। जब लोग नेगेटिव सोचते हैं तो होता ही नहीं है। सर अभी नेगेटिव से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। बहुत लोग अभी नेगेटिव फेज में हैं कि थर्ड वेव आएगा, थर्ड वेव आएगा। व्हाट इज योर व्यूज कि थर्ड वेव आएगा या नहीं आएगा? भैया पहले तो वैक्सीन ले लो, बहुत लोग को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है। अच्छा देखो, यहाँ पर म्यूटेशन का भी मतलब बात आता है कि म्यूटेंट होगा तभी थर्ड वेव आएगा, और बहुत लोगों को अभी वैक्सीन लग चुका है, बहुत लोग ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, आने को तो थर्ड वेव आ भी सकता है, और मुझे लगता है कि इतना प्रोमिनेंट नहीं आना चाहिए थर्ड वेव, यदि आएगा तो। अब यहाँ पर म्यूटेशन के थोड़ा सा अंदर का चीज जानते हैं। म्यूटेशन क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल में चेंज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। बट जो वायरस होता है उसके ऊपर वाले लेयर में बहुत से टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, उसके डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, स्पाइक प्रोटीन वगैरह जिसको बोलते हैं। तो हमारा बॉडी है वो स्पाइक प्रोटीन को भी पहचानता है,
तो हमारे बॉडी में जब वायरस आता है उसका स्पाइक प्रोटीन पहचान में आ गया तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी वो रिलीज कर देगा, क्योंकि पर्सन पहले से इन्फेक्टेड है या फिर उसको वैक्सीन लग गया है, तो वहां पर वो खत्म हो गया। बट चांसेस ऐसे भी होंगे कि वो स्पाइक प्रोटीन को ठीक से नहीं पहचान पाएगा, कुछ ऐसे परसेंटेज भी होंगे, तो उस कंडीशन में फिर से कोविड-19 आएगा। तो इसलिए जो सेकंड वेव में जितना था या फिर फर्स्ट वेव में जितना था, हो सकता है थर्ड वेव आएगा बट उतना प्रोमिनेंट ना हो। बट ये स्टिल ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे को इसके बारे में मतलब बहुत ज्यादा मैंने कुछ स्टडी नहीं किया है। मैं साइंटिफिकली जो मैंने पढ़ा है उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। दैट इज ट्रू, बट हम लोगों को सबको थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। वी हम शुड लोगों को गेट तो द प्रिकॉशन लेना ही है, ट्रू प्रिकॉशंस ट्रू तो लेना ही है। ट्रू ट्रू। सर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे अभी आपने बताया था कि हम लोग इतनी सारी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, बीमारियां कम हो गई हैं, बट हमने एक नई बीमारी सुनी थी इस दौरान में, जो थी द फंगल डिजीज, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, बहुत सारे फंगस फैले थे इस दौरान में। तो आपका इसके ऊपर क्या व्यू है कि अभी ऐसी नई बीमारियां आ सकती हैं, इतने सारे म्यूटेंट्स आए जा रहे हैं। अभी तक हमने नहीं सुना था कि इतनी जल्दी कोई बीमारी, एचआईवी अभी तक मतलब उसके म्यूटेंट्स नहीं सुने, कोविड के इतने सारे म्यूटेंट्स सुन लिए। तो इन फ्यूचर आपको क्या लगता है कि ऐसी बीमारियां और नहीं आ सकती हैं जल्दी जल्दी म्यूटेंट्स होने की वजह से? देखो, इसमें म्यूटेशन जब होता है तो जनरली ये माना जाता है कि उसका मतलब जो वायरस है वीक होता जाता है। और यहाँ पर आपने पूछा कि बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन साथ में एसोसिएटेड होकर के आए, हाँ इसको जी, बोलते हैं जैसे मेनली। फंगल। इसमें प्रीडोमिनेंटली इसमें आया था म्यूकर माइकोसिस, हाँ ब्लैक जी। फंगस या फिर कोई भी फंगस होता है। तो जो म्यूकर माइकोसिस है वो बहुत ही मतलब एक टाइप का रेयर डिसीज है। मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर पर्सन जिसको कोविड-19 से अफेक्टेड हो गया, उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया, बहुत ज्यादा वीक हो गया, तब उसको म्यूकर माइकोसिस होगा। अब म्यूकर माइकोसिस क्या होगा, वो तो मिट्टी में रहता है, मतलब सॉइल वगैरह में, मतलब हर मतलब सरफेस में है वो, मतलब बहुत ज्यादा जगह प्रेजेंट है, उसको रोक नहीं सकते आप। तो इसलिए पर्सन का जब बहुत ज्यादा इम्यूनिटी वीक हो जाता है तभी म्यूकर माइकोसिस होगा। तो वो चीज इंडिया में आया था। अगेन वही चीज है कि हम लोग हाइजीन वगैरह मेंटेन करेंगे तो ये प्रॉब्लम उतना ज्यादा नहीं आएगा। और फ्यूचर में और सिमिलर काइंड ऑफ डिजीज आने का प्रोबेबिलिटी क्या है उसको तो कोई नहीं जानता है, लेकिन आ तो सकता है उसमें, मतलब हम लोग को रेडी रहना चाहिए। सर, जैसे अभी एक और क्वेश्चन है, जो कोविशील्ड का जैसे गैप बढ़ा दिया गया था, सो आपका इस पर क्या कहना है कि इज इट सेफ टू इंक्रीज द गैप? 84 डेज का जो गैप आ गया है, अब इट हाँ इज हाँ गुड हाँ। और इट इज बैड फॉर अ पर्सन? गवर्नमेंट के लिए तो इट इज गुड, बट हम लोगों के लिए क्या है ये? देखो, इसको तो जैसा कि मतलब मैंने सुना है या फिर देखा है या फिर समझा है, साइंटिफिकली जो भी चीज है आप उसमें अमेंडमेंट करते हैं, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट करते हैं। तो यही एक अमेंडमेंट है। स्टार्टिंग में बोला गया कि हाँ 28 डेज के गैप में, या फिर उसके बाद फिर बढ़ाया, उसके बाद फिर 84 डेज के गैप गैप में लेना है। कोविशील्ड मैंने भी लिया है और मेरा 84 डेज गैप वाला है, तो 84 डेज बाद मैं सेकंड डोज लेने जाऊंगा। तो इसमें सिंपली ये चीज है कि मान लो बचपन में तुमने एक बार आम खाया होगा, ठीक है, एक ही बार आम खाया, उसके बाद तुमको दोबारा आम दिया नहीं गया, तो उसको आज पूछा जाएगा तो उसका टेस्ट तुमको पता रहेगा? नहीं पता रहेगा, ठीक है। उसके बाद बचपन में एक बार खाया आम, उसके बाद फिर थोड़ा बड़े होने के बाद खाया, ठीक है, जब तुम्हारा याददाश्त होगा तो वो टेस्ट आम का तुमको याद रहेगा। तो सिमिलरली इसलिए 2 डोज दिया जाता है, जिसको हम लोग सेकंड डोज या फिर बूस्टर डोज बोलते हैं, कि हम लोग का बॉडी है एक बार गया उसमें क्या बोलते हैं वैक्सीन, तो हमारा बॉडी एंटीबॉडी एंटीबॉडी बनाना सीख जाए, कैसे है क्या है पहचान कर गया। दूसरे बार फिर से उसको दे दिए तो फिर से वो पहचान गया, अब वो सीख गया कि हाँ ये चीज ये है, उसको याद करके रख लिया, तो वो हमारे मेमोरी सेल्स में चले जाते हैं। मेमोरी सेल्स क्या होता है, हमारे बॉडी में लंबे समय तक रहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि फिर से यदि एंटीबॉडी बनाना है तो बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो गैप की बात है, तो गैप तो साइंटिफिक स्टडी पे है, वही चीज है कि मतलब आप कितने कितने दिन का गैप देंगे जिससे हम लोग का बॉडी का मेमोरी सेल में वो रह पाएगा, उसकी स्टडी पे है। तो वो जो साइंटिस्ट है उनके अकॉर्डिंगली हम लोग को चलना चाहिए, हम लोग को अपना कुछ भी विचार नहीं बताना चाहिए, या फिर हमने वो स्टडी ही नहीं किया, जो पर्सन स्टडी किया वही तो बताएगा। हम लोग ऐसे ही कोई थ्योरी लेकर के थोड़ी थोप देंगे, या फिर हम लोग इलिटरेट थोड़ी है कि मतलब कुछ भी बोल दे अपने मर्जी से बिना किए।
जो चीज हम यदि करके देखते, यदि वो चीज होता तब बोलते। बाकी जो भी है गवर्नमेंट का रूल है, और जो साइंटिस्ट ने बताया वो सही है, 84 डेज का गैप है तो है। मैं तो लूंगा, बाकी जो लोग लेंगे नहीं लेंगे उनकी मर्जी। कि सर नाउ अभी हमने इतनी सारी चीजें देख ली हैं कोविड के दौरान कि हम लोगों की लाइफस्टाइल में इतने चेंजेस आए हैं। कोविड के दौरान हम लोगों ने साफ सफाई करना सीख लिया है, बाहर जाते हैं तो मास्क पहनना सीख लिया है। सो आपके अकॉर्डिंग कितने चेंजेस आएंगे इंसान की लाइफ टाइम में आफ्टर दिस कोविड? अपनी लाइफ में अब वो कैसे चेंजेस देखेगा? शादियां अब 20 लोगों के साथ होने लग गई हैं। और ये चीजें रहेंगी आगे, नहीं रहेंगी? आपको क्या लगता है इंडिया जैसी कंट्री में? अब देखो, मेरे को तो बहुत सारा चेंजेस है, बहुत अच्छा लगा। जैसे शादी का बात किया तुमने, तो अभी मेरा साले का शादी हुआ है, ब्रदर इन लॉ का, 7 जुलाई को। तो उसमें जब 25 लोग का था परमिशन, तो मेरे को तो अच्छा लगा लिटरली। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ करने का, और बहुत ज़्यादा ये मतलब ताम झाम और ये सब, मतलब बाजा गाजा जिसको बोलते हैं, बहुत सारा साउंड वाउंड, तो ये सारे चीज़ से मतलब हेडेक से मुक्ति। और बहुत सारे लोग आते हैं, उसके बाद फिर मतलब खाना खाएंगे, दैट इज़ फाइन। उसके बाद फिर बोलते हैं इसमें ये अच्छा नहीं है, उसमें वो अच्छा था, उसके में वो अच्छा था, मतलब कंपैरिजन बहुत सारा चीज़ होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये शादी वाला जो सिस्टम है अभी कोविड-19 वाला, तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कई बार क्या होता है कि शादी में हम किसी को बुला रहे होते हैं, तो सामने वाला पर्सन कुछ बिजी रहता है, लेकिन कुछ ऐसे रिलेटिव होते हैं उसके कि उसको जाना ही पड़ता है, तो काम छोड़ करके जाना पड़ता है, तो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी पूरे देश की ही घट रही है। तो ठीक है भैया, कम लोगों में शादी करो, ये मुझे अच्छा लगा। दूसरा, जो हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं लोग, जो मास्क का और ये सब चीज़ का आदत है, तो इससे डेफिनेटली मैंने जैसे ही बताया कि और बहुत सारे डिसीज है जो कम हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, तो ये अच्छा है। तीसरा क्या हो रहा है कि घर में बैठे बैठे जो बच्चे हैं वो बाहर खेल नहीं पा रहे हैं, अपने दोस्तों से मिल नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। मीन्स वहाँ पर बच्चे थोड़ा सा डिप्रेस हो रहे हैं, उनका माइंड का जो डेवलपमेंट है वो सही से नहीं हो पा रहा है, स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं, तो वहाँ पर वो स्कूल वगैरह खोलने की ज़रूरत है। इसके बाद एक और प्रॉब्लम आएगा कि जैसे सबको भी घर में रहने की आदत लग गई, उसका जैसे स्कूल या फिर कॉलेज खुलेंगे तो बच्चे नहीं जाना चाहेंगे बाहर, क्योंकि उनको आदत लग गया घर में मोबाइल का, लैपटॉप का, बहुत बुरा आदत होता है। तो ये सारा चेंजेस होंगे। और बाकी तो टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा कि कौन किस चीज़ को कैसा ले रहा है। जो भी चीज़ है उसको बहुत ही पॉजिटिवली लिया जाएगा, और जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा, है ना। और आसपास में भी उनको लोगों को बताएंगे कि हाँ भाई इसको ऐसा करो करके। जो लोग भी हमारा बात सुन लेंगे वो सुन लेंगे, नहीं सुनेंगे वो तो अपनी मर्जी का कर ही रहे। दैट इज ट्रू सर। जैसे आपने बताया कि बच्चों की एजुकेशन के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, और आप हेड ई लर्निंग रह चुके हैं, सो आपको ई लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है कि कोविड से ई लर्निंग और एजुकेशन इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट आया है? इसमें क्या हुआ कि एजुकेशन इंडस्ट्री ने ना मजबूरी में सीख लिया ऑनलाइन सारा चीज़, ठीक है। तो मजबूरी में तो सीख लिया है, लेकिन मजबूरी की चीज़ अच्छी होती नहीं है जब तक आप उसमें मन से ना करो। अब सब लोग सीख गए हैं, जिन्होंने भी मतलब मजबूरी में कंटेंट बनाया, अच्छा कंटेंट नहीं बना पाए, लेकिन अब अच्छा कंटेंट बनाना सीख गए हैं, तो वो लोग अब अच्छा कंटेंट बना ले और इसको ना मिक्स्ड वे में करें। मीन्स ऑफलाइन और ऑनलाइन को कंबाइन कर दें तो एक बहुत ही अच्छा चीज़ सामने आएगा, बहुत ही बेस्ट चीज़ सामने आएगा, जिससे किसी का भी टाइम पास नहीं होगा, सबको एकदम इम्पैक्टफुल मटेरियल मिलेगा। तो वही चीज़ आपको समझना है। जैसे प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं वो ऑफलाइन ज़्यादा अच्छे से हो सकती है, बहुत सारे थ्योरी की चीज़ें हैं जिसमें आपको क्लास में जाकर के टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, बच्चा खुद से पढ़ लेगा लेक्चर देख करके। डाउट क्लियरिंग सेशन रखिए जो ऑफलाइन है उसमें, तो ये सारा चीज़ है। तो कम टाइम में आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ये चीज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से। ट्रू बहुत सारी चीजें हमें ऑनलाइन लर्निंग में सीखी हैं। ऑनलाइन हम लोगों ने पेन टैब चलाना सीख लिया है, हम लोगों ने, बहुत सारे टीचर्स इससे पहले नहीं जानते थे वीडियोस बनाना, उन लोगों ने वीडियोस बनाना सीख लिया है। बच्चों ने भी इतनी सारी चीजें, बच्चे भी जैसे अगर फार्मेसी के स्टूडेंट हैं वो नहीं इतने कंपैटिबल थे, दे आर नाउ कंपैटिबल विद द टेक्नोलॉजी। सो सर, जैसे अभी इतने सारे टीचर्स ने भी ऑनलाइन मोड अडेप्ट करा है, कुछ लोग, कुछ टीचर्स यूट्यूबर्स भी बने होंगे, उनके लिए कुछ सजेशंस एंड टिप्स बता दीजिए। सजेशन एंड टिप्स क्या है कि मतलब अभी तक आपने मजबूरी में किया था तो यार मतलब उसको पैशन के साथ करो, करना ही है
है ना, मजबूरी में करनी है तो क्यों ना उसको खुश होकर के करो। थोड़ा सा अभी सबको समझ में आया होगा कि स्टार्टिंग में मतलब देखा जाए तो जब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल तो बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि क्या वीडियोस बनाते रहते थे। उस समय वीडियोस वगैरह का कोई ट्रेंड नहीं था, कोई बनाता नहीं था, मतलब एक तरीके से अलग तरीके से ऐसे तिरछी निगाहों से देखते थे लोग, ठीक है। अब वो लोगों को ये चीज करना पड़ रहा है तो अब फिर से तिरछी निगाहों से देखते हैं लोग ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या बोलते हैं, टाइम के साथ आपको चलना चाहिए और बहुत सारा चीज आपके बस में नहीं होता है तो आप उसको एज इट इज मतलब खुशी खुशी उस चीज को करो। और कुछ भी चीज कर रहे हो तो आप में इंप्रूवमेंट होगा, डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट होगा। सर आप इनिशियल फेज में कैसे मोटिवेटेड रहते थे? मैंने आपका देखा है कि हर वीडियो जैसे ही आप अपलोड करते हैं आप बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत मोटिवेटेड होते हैं। ईच वन ऑफ अस इज नॉट। तो इनिशियली जब यूट्यूबर्स के पास 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड? इसमें क्या है ना कि मोटिवेशन कोई बाहर से आपको नहीं दे सकता, या फिर कोई कोई वीडियो है, आपको कोई वीडियो 1 लाख व्यूज चला गया, अभी कोई वीडियो हमारा 100 व्यू भी नहीं जाता है, अभी भी मेरे 1,80,000 सब्सक्राइबर है, अभी देख लो पिछले 2-3 दिन के व्यू 1000 व्यू भी नहीं गए हैं, मतलब 2-3 वीडियोस हैं, मतलब 1000 व्यूज भी उसमें नहीं है। तो उसमें मोटिवेटेड होने गए कि मैं देखता हूँ कि मैंने वीडियो बनाया जैसा मैं चाह रहा था वैसा मैं बना पाया कि नहीं बना पाया। यदि अच्छा बनाया कंटेंट तो बस मेरे को खुशी है, मैं खुश हो गया। और दूसरा चीज़, आज मेरे पास इतना दिमाग है कि मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ। मान लो फ्यूचर में ऐसा कुछ कंडीशन हुआ मेरे साथ, मैं बूढ़ा हो गया, मेरा दिमाग उतना काम नहीं कर रहा होगा या फिर उतनी मेरे सोचने समझने की शक्ति नहीं होगी, तो मैं अपना ही वीडियो देख करके याद कर सकता हूँ कि हाँ यार ये चीज़ मुझे आता था और ये इसको ऐसे करना चाहिए। अपना मतलब अपना वीडियो मेरे लिए रेफरेंस होगा। फ्यूचर में कोई वीडियो देखेगा, मान लो कई बार ऐसा हुआ कि मेरा ठीक से दिमाग काम नहीं कर रहा है, एज ए मतलब टीचर मैं हो सकता है फ्यूचर में अच्छा ना पढ़ाऊँ या फिर ना पढ़ा पाऊँ ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज, तो लोग देख करके तो ये जानेंगे ना कि हाँ ये एक दिन अच्छा पढ़ाता था, अभी कुछ प्रॉब्लम है इसलिए नहीं पढ़ा पा रहा है। तो वो चीज़ है, सारा चीज़ है, तो इसलिए मैं खुश रहता हूँ। मतलब अच्छा एक व्यू भी आए तो कोई गम नहीं है, बाकी अच्छा वीडियो बनना चाहिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए और एंड बी मोटिवेटेड। दैट इज ट्रू। सर आपकी वीडियोस से इतने टीचर्स ने पढ़ा, आप बोल रहे हैं कि खुद से पढ़ना ही लाइक इन फ्यूचर आप खुद से पढ़ेंगे, दैट इज योर मोटिवेशन। बट अभी भी आई एम टेलिंग यू इतने सारे टीचर्स पढ़ते हैं फिर पढ़ाते हैं क्लास में, एंड इन ऑनलाइन क्लासेस बहुत हुआ होगा कि टीचर्स ने गूगल क्लासरूम में अपने बच्चों को आपकी एज इट इज वीडियो शेयर कर दी होगी कि बच्चों देखो ये है सब्जेक्ट, ये है टॉपिक। सो ये चीज किसी को भी मोटिवेट कर सकती है इन फ्यूचर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए, यूट्यूबर बनने के लिए। सर ये इंटरेक्शन इतना अमेजिंग है, इस इंटरेक्शन के बाद अगर कोई भी इंसान है वो खड़ा होएगा, वो बोलेगा अभी मेरे को यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, मुझे मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे नया चैनल बनाना है एंड मेरे को डॉक्टर पुष्पेंद्र क्लासेस जैसा बनना है। नहीं, सब लोग अपना अपना बने, वैशाली लर्निंग बन रहे हैं, वैशाली है तो आपका नाम XYZ है तो XYZ बनो, कोई डॉक्टर पुष्पेंद्र क्लासेस ना बने। मतलब अपना सब कोई आइडेंटिटी रखे, मतलब किसी के जैसा बनने की कोशिश नहीं, मतलब अपना अपने अपने में मजे में रहो और मोटिवेटेड रहो सब लोग, एकदम बढ़िया। Thank you so much, sir. Thank you so much for coming to the show, for motivating our students. ये शो जितना अमेजिंग है, मेरे लिए जितना स्पेशल है, मेरे गुरु आए हैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन, किसी भी शो में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो इस शो को बीट कर जाए मेरे चैनल पर। नहीं ऐसा नहीं है, आई एम नॉट योर गुरु, वी आर कलीग्स। नहीं सर, यू आर। मेरे को स्टार्टिंग में बताना कि भाई ये चीज ये गलत है, यहाँ पर थंबनेल की जरूरत है, यहाँ पर तुमने नोट्स शेयर नहीं करे बच्चों के साथ, तुम्हें एक फोटो खींचनी है बस और नोट्स बन जाते हैं। आई डिडंट नो इतना इजी तरीका था और नोट्स बनकर बच्चों के पास तक पहुंच गए। सो ये चीजें सर किसी से भी जिससे लर्निंग हो लाइफ में, दैट इज गुरु। और आपसे तो मेरी लाइफ की वो लर्निंग हुई है जिसने मेरी लाइफ को एक शेप करा है। व्हेन आई वाज इन द इनिशियल फेजेस आई डिडंट नो एनीथिंग, ABC नहीं जानती थी मैं टीचिंग की, एंड नाउ एटलीस्ट सम पीपल आई कैन से 17,000 में से 700 तो जानते ही होंगे मुझे बहुत अच्छे से। इट वाज जस्ट बिकॉज यू मेड मी स्टार्ट। इनिशियल जो मोटिवेशन रहता है बहुत सारे बच्चों को आज के बाद मिलने वाला है, बहुत सारे टीचर्स को आज के बाद मिलने वाला है, एंड
they will rock it. They will start their channel और ये जो शो है उनकी लाइफ में I guess बहुत इम्पैक्ट करने वाला है. We all hope कि आप लोग बहुत ग्रो करें, आप लोग एक नया चैनल खोलें, लोगों में एजुकेशन फैलाएं, नॉलेज फैलाएं and reach out to people, grow, explore, learn. Thank you so much, sir, for coming. Thank you so much for making all of us aware about so many things. For COVID, YouTube, a lot of things you told us today. बहुत बहुत important चीजें बताई हैं. And अच्छा सच्चा टीचर वही है जो as I told you, जो changing time के साथ साथ change होता रहे. As you changed your way, normal teaching से COVID के लिए अवेयरनेस फैलाना, इट इज सच अ गुड थिंग. इवन बहुत सारे टीचर्स अपना जो ट्रेडिशनल वे है उसी में ही अटके रह जाते हैं. दे डोंट डू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मोटिवेशन मिलने वाली है. थैंक यू सो मच वंस अगेन सर फॉर कमिंग टू द शो. Thank you so much, and all the best to everyone who are listening. They can get success in their life. Thank you.